SrSO4 XYZ लिया था, अलग अलग कंसेंट्रेशन लिए थे. Basically the amount which is getting dissolved is in terms of moles that are going to be different, और वो मैंने independently लिया था. Similarly यहाँ पर भी we have to take it independent and different. ठीक है, XYZ लेंगे इन तीनों, and we are just going to solve. We will solve it question 1 वाले केस में. AgCl dissolve कर रहा है प्लस NCl, समान डिसॉल्व करेगा, ये x रहेगा KSP AgCl 10 to the power minus 10 AgBr Ag plus Br minus ये x रहेगा, सॉरी ये y रहेगा, इसका अमाउंट y डिसॉल्व करता है, ये y रहेगा, ये y रहेगा, और इसका डिसोल्यूशन जेड होता है. Ag प्लस NZ, ये तीनों कॉमन है, Ag जो है वो कॉमन है तीनों में, so this will become x plus y plus z at the end. This will become x plus y plus z. Here it will also become x plus y plus z. KSP will be AgBr. KSP will be AgCl. Sorry, AgI. Ten to the power 10 will be equal to x plus y plus z. Ag plus का concentration into Ag plus into Cl minus, which is equal to x plus y plus z, x plus y plus z into x 10 to the power minus 12 Ag plus Br minus x plus y plus z into y, और ये 10 to the power minus 16 plus I minus, which is x plus y plus z into z. You can name them equation 1, 2 and 3. 1 and 2 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन will give me x by y is equal to 10 to the power. Equation 2 by 3, this is going to give me y by z is equal to 10 to the power minus 10 to the power 4.
that implies x is equal to 10 to the power 2y and z is equal to y is equal to 10 to the power 4z, that is 10 to the power 6. यहाँ से y is equal to 10 to the power 4z आएगा, 10 to the power 4z को y के बदले रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, it will become 10 to the power 6z. ठीक है, अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको प्लेस कर देंगे. Let us put it in maybe first equation or maybe in second equation or in third equation. किसी भी एक जगह पर प्लेस कर देंगे. x into x is equal to x तो x ही रहेगा, y के बदले में x के टर्म्स में अगर रखेंगे तो it will become 10 to the power minus 2x. z के बदले में x रखेंगे तो 10 to the power minus 6x is equal to 10 to the power minus 10. x कॉमन ले लेंगे, it will become x square 1 plus 10 to the power minus 10. ये टर्म को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 10 to the power minus 2 है, this can also be neglected, may not write it. बहुत प्रिसाइजली अगर दिख रहा है कि पूछा हुआ है तो फिर इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे, अदरवाइज इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो अगर प्रिसाइज कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो कीप इट, बट अभी 10 to the power minus 2 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन सेफली नेग्लेक्ट इट अप टू 3%. यानी ये अभी जो है ये 0.01 है, ये अगर 0.3 या 0.4 तक भी रहता तब भी हम इग्नोर कर सकते थे, 0.3 तक पीसफुली इग्नोर कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम, अगर एग्जैक्ट करते हैं तो 1.01 x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 10, that is x square is equal to 10 to the power minus 10 divided by 1.01, or x is equal to 10 to the power minus 10 divided by 1.01 raised to the power 1 by 2. This will make the numerator 10 to the power minus 5 और denominator को 1.01 raised to the power minus half, which will be equal to 9.95 to 10 to the power minus 6. 9 to the power 9.95 10 to the power minus 6. This will be the concentration of AgCl. अब Y and Z निकाल सकते हैं. AgBr will be 9.95 into 10 to the power minus 6 multiplied by 10 to the power minus 2. इधर डिवाइड होगा, ऊपर 10 to the power minus 2 हो जाएगा. 9.95 into 10 to the power minus 8 power minus 6 into 10 to the power minus 6 is 9.95 power minus 2. ठीक है, दीप आपके आंसर्स सही हैं और आंसर्स आर राइट. लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, दैट विल बी अगेन
गुड, ट्राई करेंगे हम लोग, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ये selective precipitation. Selective precipitation में क्या होता है कि ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज राइट। वो लास्ट स्टेप में z इज इक्वल टू जो 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड सॉरी 10 टू द पावर 11 किया है तुमने ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1.005 को तुमने एज इट इज मतलब वो 1 बाय उसको 1 ले लिया है, ठीक है। मैंने उसको 1 बाई 1.005 को 1 नहीं लिया है, मैंने उसी 1 बाई 1.005 को 0.995 ले लिया है, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम ये जो तुम्हारा वैल्यू है ना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -5 एंड ये वाला तो 10 टू द पावर -5 ऊपर में रहेगा, ये रूट अंडर 1.01 जो है दिस इज नथिंग बट 1.005 और इसको तुमने कंसीडर कर लिया है 1 और मैं वहां पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन में इसको 9.9 सॉरी 0.995 कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग, इसीलिए थोड़ा सा और ये डिफरेंसेस है, ठीक है। अदरवाइज योर आंसर इज परफेक्ट। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में होता क्या है कि in a bucket we are going to have a mixture of ions, ठीक है, we will have a mixture of ions। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केसेस हमने कंसिडर किए हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डला हुआ है, ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड डला हुआ है और बैरियम हाइड्रोक्साइड भी डला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मेरा मूड हुआ कि मैं और तीनों जो है वो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर है, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, जो मूड है वो हम पिक कर सकते हैं, depends on our mood। So we have a solution in which we have calcium hydroxide 1 molar, strontium hydroxide 1 molar and barium hydroxide 1 molar, ठीक है। और इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके पिंच में H2SO4 डालता है, ठीक है। H2SO4 पे डालने से होगा क्या, द रिएक्शन विल स्टार्ट, ठीक है, एंड द रिएक्शन विल स्टार्ट तो ऑब्वियसली सारे रिएक्ट करेंगे
जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ज्यादा रिएक्ट करेगा, कम रिएक्टिव होगा कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट करके क्या क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर सल्फेट्स, इससे बैरियम सल्फेट बनेगा, ये SO4, इससे स्ट्रॉन्सियम सल्फेट बनेगा, इससे कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और ये चारों तीनों क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, ड्यू टू व्हिच they will come out of the solution, they will settle down, due to which they will settle down into the beaker or our flask। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसका क्वालिटेटिव तो ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होगी हमारी कि हम H2SO4 कितना डालेंगे, सो दैट ये बैरियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो, नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करने के लिए H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, ये मुझे सबसे पहले पता करना है। फिर दूसरी चीज मुझे ये पता करनी है कि मैं H2SO4 डालता जाऊंगा, बैरियम सल्फेट मान लो निकल गया पूरा, या शुरू में बैरियम सल्फेट ही से निकलेगा या स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम भी निकलेंगे। दूसरा चीज, अगर स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम नहीं निकल रहे हैं तो स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम कब निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ठीक है, अगर निकलेंगे तो कितना H2SO4 डालने के बाद स्ट्रॉन्सियम सल्फेट निकलेगा, और स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम दोनों एक साथ निकलेंगे क्या, या जैसे पहले बैरियम निकला उसके बाद स्ट्रॉन्सियम निकलेगा, फिर वो खत्म होने के बाद फिर कैल्शियम सल्फेट निकलेगा। सो हाउ इट इज इट गोइंग टू बी, that is something which we have to, which we are trying to look into। ठीक है, now last वाले question में I had taken some values, so I'll repeat it। -14 -10 -8 calcium sulfate, KSP CaSO4 is equal to 10 to the power -8, KSP strontium sulfate is equal to 10 to the power -10, KSP barium sulfate is equal to, ठीक है, H2SO4 जब हम डाल रहे हैं, सपोज 2 ड्रॉप हमने डाला या 1 ड्रॉप हमने डाला, ड्रॉप वाइज ही हम जनरली डालेंगे, एंड 1 मोलर सॉल्यूशन भी रहेगा, 1 ड्रॉप इज हार्डली गोइंग टू बी 1 ml, तो अमाउंट ऑफ H2SO4 जो एक्चुअली जाएगा सॉल्यूशन के अंदर में, दैट इज एट द टाइम इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, हाउ मच इट विल बी, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 ड्रॉप 1 ml of 1 molar solution भी अगर हम ले रहे हैं तो it will be 1 millimole, and 1 millimole will go into, अगर 1 लीटर हमने इसका सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो it will become approximately 10 to the power -3 molar। Is it okay? H2SO4 जो अंदर गया, that is 10 to the power -3 मोलर। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं जो यहाँ पर इनकी मोलैरिटी है, उसके हिसाब से ही ये आयंस प्रोड्यूस करके रखेंगे, यानी
बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर विल बी behaving something like this: Ca2 plus aqueous plus OH minus twice strontium. This will be Sr2 plus aqueous plus 2OH minus aqueous. जितना कंसंट्रेशन इसका उतना कंसंट्रेशन इसका, जितना इसका इसका उतना इसका। बैरियम के केस में भी सेम चीज रहेगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड Ba2 plus aqueous. So all of them are going to be this. All of them are going to be what? 1 molar each. Is this okay? ये सारे क्या रहेंगे शुरू में? 1 मोलर रहेंगे। इसमें कोई डाउट हम लोगों को? Each will be 1 molar at beginning. ठीक है, अब हमने डाला सल्फेट को, तो they are going to react like Ba2 plus SO4 2 minus, giving us BaSO4. Strontium 2 plus SO4 will give us SrSO4. All of them will form precipitate. फिर ये Ca plus SO4 2 minus, giving us CaSO4. Is it okay? अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमको ये सोचना होता है कि इन सब का कंसंट्रेशन क्या है? Each of them is 1 molar. ठीक है, एक ड्रॉप डाला तो इसका कंसंट्रेशन कितना मिला हम लोगों को? 10 to the power minus 3 मोलर। ठीक है, KSP क्या है? KSP क्या है हमारा? बैरियम का रिवर्स रिएक्शन। KSP क्या है? KSP का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 plus and CaSO4 SO4 2 minus। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 10 to the power minus 8। इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 10 to the power minus 10। अगर इतना होएगा, सर इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा होएगा तो दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो अभी हम इसका और इसका कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करें, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? In any of these cases, can precipitation happen? होगा नहीं होगा? 1 molar 10 to the power minus 3 molar। KSP से तीनों के तीनों ज्यादा हैं या कम रहेंगे? Ba2 plus के कंसेंट्रेशन को सल्फेट के कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू? 10 to the power minus 3। 10 to the power minus 3 10 to the power minus 14 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन होगा, राइट? This will precipitate, no doubt about it. The barium sulfate will start precipitating. स्ट्रॉन्सियम सल्फेट का भी ज्यादा है, ये भी प्रेसिपिटेट होना चाहिए, और कैल्शियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होना चाहिए, राइट? आइडियली रियलिटी में क्या होता है? तीनों प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है बैरियम सल्फेट। ठीक है, barium being more reactive will first react preferentially with sulfate ion, and the precipitation of BaSO4 will take place the first। ठीक है,
रिएक्टिविटी बैरियम की सबसे ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है. बैरियम इज मोर रिएक्टिव. बैरियम विल फर्स्ट interact with sulfate ion and will form the precipitation. ठीक है, वो सिंगल ड्रॉप की वजह से the precipitation will keep happening till the time all the sulfate ion has already disappeared. ठीक है, पूरा सल्फेट आयन डिसअपियर कर जाएगा तो बैरियम का कंसंट्रेशन क्या होगा? इट विल बिकम 1 मोलर माइनस 10 to the power minus 3 molar, right? It will get substantially insignificantly lesser than 1 molar. ठीक है, दूसरा ड्रॉप डाला हमने, फिर से यही चीज होएगा. इसका प्रेसिपिटेशन KSP जो होगा, आयनिक प्रोडक्ट जो होगा बैरियम 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस का आयनिक प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन KSP ऑफ बैरियम सल्फेट, एंड इसलिए फिर से बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा प्रेफरेंशियली. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जितने ड्रॉप्स हम डालेंगे, हर ड्रॉप के साथ कुछ बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा और सल्फेट आयन फिनिश होएगा. 100% फिनिश नहीं होएगा बट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा. अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये 10 to the power minus 3 मोलर का एक ड्रॉप हमने डाला तो कितना सल्फेट आयन पर ड्रॉप खत्म हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जब तक मेरा कंसंट्रेशन ये 1 मोलर रहेगा या 1 मोलर के आसपास रहेगा, सल्फेट आयन जो 10 to the power minus 3 हम डाल रहे हैं ना, उसमें से यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट हमारा क्या रहना चाहिए? Ba2 प्लस इंटू सल्फेट आयन का आयंस का कंसेंट्रेशन. तो ये अगर 1 मोलर है एट द एंड ऑफ, मतलब 1 मोलर या 1 मोलर के आसपास है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो सल्फेट आयन कितना तक कंज्यूम हो जाएगा? अप टू द लेवल 10 to the power minus 14 मोलर तक. यानी 10 to the power minus 3 मोलर हमने एक ड्रॉप में डाला, उसमें से लगभग पूरा का पूरा, मतलब वो तब तक कंज्यूम होता जाएगा जब तक उसका कंसेंट्रेशन 10 to the power minus 14 मोलर ना हो जाए. 10 to the power minus 14 मोलर हो गया मतलब ऑलमोस्ट कंज्यूम ही हो गया, राइट ना, बचा ही नहीं उसमें कुछ, because 10 to the power minus 14 is very very small compared to 10 to the power minus 3. एक तो हमने एक ड्रॉप डाला था, उस ड्रॉप का भी 10 to the power 11 टाइम्स जो है वो डिक्रीज कर गया. ठीक है, ड्रॉप का 10 to the power 11 टाइम्स हो गया, so sorry 10 to the power minus 11 टाइम्स हो गया. So that is very very small number, very insignificant number. Anyway, so we are going to, तो ये कंसेंट्रेशन तक वो कंज्यूम हो जाएगा सल्फेट पर ड्रॉप. ड्रॉप्स बाय ड्रॉप डालते गए, बैरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट होकर के बाहर आता जाएगा. आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली इसका कंसेंट्रेशन फॉल डाउन, सिग्निफिकेंटली फॉल डाउन करेगा, 1 मोलर से कम होकर के 0.1 मोलर, 0.1 मोलर से कम होकर के 0.001 मोलर. ठीक है, इस तरीके से ये कम होता जाएगा. अब कम होता जाएगा तो क्या होगा? a time will come जब इसका concentration 10 to the power minus 7 or 10 to the power minus 11 जब हो जाएगा, ठीक है, टेन टू द पावर माइनस 11 डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, 10 to the power minus 7 जब हो जाएगा, ठीक है, 10 to the power minus 7 बैरियम सल्फेट हो गया और स्ट्रोंशियम अभी भी 1 मोलर है. ठीक है, ये 10 to the power minus 7 मोलर हो गया और ये 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है. ठीक है, नाउ इस टाइम पे जब हम 10 to the power minus 3 मोलर सल्फेट आयन डालेंगे, अगला ड्रॉप जब डालेंगे, ठीक है, तो देयर विल बी टू कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस. टू कॉम्पिटिटिव क्यों होएगा? क्योंकि 10 to the power minus 7 होने के बाद इसका आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो 10 to the power minus 10 हो जाएगा. ठीक है, वैसे 10 to the power minus 10 भी 10 to the power minus 10 भी
इसका बड़ा ही रहेगा, मतलब 10 to the power minus 10 is going to be greater than Ksp of barium sulfate. 10 to the power minus 10 is going to be greater than Ksp of barium sulfate. But at this concentration, uh, ये कंसेंट्रेशन अचीव करने के बाद स्ट्रॉन्सियम सल्फेट का भी प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट. सो नहीं, सॉरी, 10 टू द पावर माइनस 7 पर स्टार्ट नहीं होएगा और पहले हो जाएगा. बताता हूँ, एक सेकेंड. और ये 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 3 हम डाल रहे हैं. हाँ, 10 टू द पावर माइनस 14 हो रहा था. इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 4 पर आएगा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 तक डिक्रीज करेगा. हाँ, सॉरी, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर तक जब डिक्रीज करके आएगा ना बैरियम सल्फेट का, बैरियम का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर तक, तो जब हम 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर इसका कंसंट्रेशन बैरियम का आ गया, उसके बाद जब 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर मैं ड्रॉपलेट डालता हूँ सल्फेट आयन का, तो अभी इसका प्रेसिपिटेशन तो होएगा, बैरियम सल्फेट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, दैट्स ट्रू. बट ये वाला जो ड्रॉप होएगा 10 टू द पावर माइनस 3 जो मैंने ऐड किया, उसके बाद सल्फेट आयन का जो कंसेंट्रेशन हमारा बचेगा, ठीक है, दैट विल बी गवर्न्ड बाय Ba2+ into sulfate 2 minus should be equal to 10 to the power minus 14. बैरियम कितना हो गया है मेरा 10 to the power minus 4 और 10 to the power minus 3 डालने से इसका कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा. ठीक है, प्रेसिपिटेट करने के बाद प्रेसिपिटेशन होने के बाद सल्फेट आयन जो बचेगा ना यहाँ पे, उसका लेवल जो रहेगा दैट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 10. ठीक है, जब इसका कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर रहेगा, तो इसका कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर रहेगा. 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 2 minutes. Am I audible? Precipitation of sulfate, barium sulfate के बाद स्ट्रोंसियम का precipitation 10 to the power minus 4 पर एग्जैक्टली नहीं, बट माइनस 4 के थोड़ा सा ऊपर से ही चालू हो जाएगा. ठीक है, एक्चुअली जब 10 टू द पावर माइनस 3 इसका कंसंट्रेशन पहुंचेगा ना, और उसके बाद अगला ड्रॉप जो हम डालेंगे उसमें हम 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर डाल रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर सल्फेट आयन डाल रहे हैं. तो यहाँ पर बैरियम सल्फेट डिक्रीज करेगा, मतलब बैरियम विल रिएक्ट विद सल्फेट आयन, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो दोनों लगभग इक्वल अमाउंट, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में एडेड है या है प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो बोथ विल रिएक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली. ठीक है, और इस कंप्लीशन में जैसे ही इसका कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 ड्रॉप करेगा, ठीक है, obviously same amount of this will also would have been consumed, sulfate ion भी उतना consume हुआ रहेगा, and it is that point, मतलब जब हमारा strontium का precipitation will start. So normally barium and sulfate 10 to the power minus 3 से barium जैसे ही कम होने लगेगा, 10 to the power minus 3 से barium कम होने लगेगा, strontium sulfate का precipitation will start. ठीक है, ड्रॉप वाइज हम डालते जाएंगे. अब इस कंसेंट्रेशन, जब बैरियम का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 के नीचे आ गया, तब फिर बैरियम और स्ट्रोंसियम ये दोनों साथ साथ प्रेसिपिटेट होने लगेंगे.
और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब स्ट्रोंशियम का खुद का प्रेसिपिटेशन, स्ट्रोंशियम का खुद का लेवल 10 टू द पावर -2 तक ड्रॉप ना हो जाए। इट इज व्हेन 10 टू द पावर -2 तक इसका ड्रॉप हो जाएगा, देन कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, स्ट्रोंशियम का 10 टू द पावर -2 पहुंच जाएगा एंड देन कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। ठीक है, और जिस समय स्ट्रोंशियम का 10 टू द पावर -2 आया रहेगा, प्रेसिपिटेशन 10 टू द पावर -3 के बाद स्टार्ट हुआ है, इसका 10 टू द पावर -2 आया रहेगा, इसका लेवल जो रहेगा दैट विल बी ऑफ द लेवल ऑफ 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -6 तक गया होगा। ये दोनों प्रेसिपिटेट होते रहेंगे एंड कैल्शियम का साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। कैल्शियम प्रेसिपिटेट होने के लिए 1 मोल ऑफ और H2SO4, और इस प्रोसेस में हमने H2SO4 डाला कितना, तो देखो बैरियम का 1 मोल से 10 टू द पावर -6, मतलब इसका लगभग 1 मोल जो है वो कंज्यूम हो गया है। 1 मोल कंज्यूम करने के लिए सल्फेट आयन हमने 1 मोल डाल दिया होगा। स्ट्रोंशियम 10 टू द पावर -2 से डिक्रीज होने लगा है, दैट इज 1 मोल में से 0.01 मोल के आसपास बचा हुआ है, मतलब लगभग यहाँ पर भी 1 मोल स्ट्रोंशियम प्रेसिपिटेट हो गया, 0.99 मोल्स प्रेसिपिटेट हो गया है एंड देन कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब 1.99 मोल्स ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है सल्फेट। कैल्शियम के प्रेसिपिटेशन कंप्लीट, यानी इसका भी लेवल 10 टू द पावर -2 से कम होने के लिए 0.99 मोल्स कंज्यूम हो जाने के लिए, या उससे और कम होने के लिए 0.999 मोल्स तक कंज्यूम होने के लिए, we will require almost 1 mole of sulfate ion more। तो फिर से ये लगभग, so basically जब 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन हम डाल चुके होंगे, 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस डाल चुके होंगे, उसके बाद इनका कंसेंट्रेशन कैसा रहेगा। अच्छा, 3 मोल जब तक हम सल्फेट डाल चुके होंगे, उसके बाद अगला ड्रॉप जब डालेंगे तो फिर से मेरा सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा सॉल्यूशन में, वही 10 टू द पावर -3 मोलर अगला ड्रॉप डालेंगे तो, क्योंकि जो भी सल्फेट आयन डाले थे वो सारा का सारा चलते गया, यूज होते गया। 10 to the power -3 हमने मेंटेन किया। The moment I maintain 10 to the power -3 in that beaker, बैरियम का क्या रहेगा, बैरियम तब तक किस लेवल तक प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, it would have precipitated to an extent of 10 to the power -11 such that the ionic product becomes 10 to the power -14 and nothing more precipitates। ठीक है, स्ट्रोंशियम का लेवल किस लेवल तक आ चुका होगा, it will be 10 to the power -7 such that इसका भी कोई और प्रेसिपिटेशन ना हो, और कैल्शियम का 10 to the power -5 तक। Are we getting this point? Is this okay? अब Yes, उसके sir. बाद फर्दर ड्रॉप्स अगर और डालते जाते हैं हम, जैसे एक ड्रॉप डाला 10 टू द पावर -3 हुआ, और दूसरा ड्रॉप डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, दूसरा ड्रॉप डालेंगे तो दिस विल बिकम 2 into 10 टू द पावर -3, तीसरा डालेंगे, 10 ड्रॉप डाल लिया तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मोलर सल्फेट आयन हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होगा क्या, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -2 अगर सल्फेट हो गया तो इन सब का कंसंट्रेशन जो है बाय 10 टाइम्स फर्दर डिक्रीज करेगा। ये 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, सच दैट इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो KSP के बराबर रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहे। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज कर जाएगा। वैसे अब ये ऑलमोस्ट सारे के सारे, ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ये भी नेग्लिजिबल है, और 10 टू द पावर -6 होने के बाद कैल्शियम भी नेग्लिजिबली प्रेजेंट है वहां। ठीक है, लगभग सारा का सारा लगभग सारा का सारा प्रेसिपिटेट हो गया है बैरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक दो चीजें और भी हमसे पूछी जा सकती हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन पहली बार चालू होगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन पहली बार चालू कब होगा, जब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर
8 का लेवल टच करेगा, ठीक है। कैल्शियम सॉरी सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -8 का सब्सटेंशियल लेवल जब टच करने लगेगा, तब कैल्शियम सल्फेट का ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होएगा, ठीक है। ये 10 टू द पावर -8 कब पहुंचेगा? 10 टू द पावर -8 तब पहुंचेगा जब स्ट्रोंसियम का लेवल 10 टू द पावर -2 टच करेगा, ठीक है। और जब सल्फेट 10 टू द पावर -8 रहेगा, स्ट्रोंसियम 10 टू द पावर -2 रहेगा, तो बैरियम कितना रहेगा? इट विल बी 10 टू द पावर -6, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इक्विलिब्रियम के लिए। नाउ द पॉइंट इज, जब कैल्शियम प्रेसिपिटेट होना चालू होता है तो स्ट्रोंसियम कितना परसेंट तक प्रेसिपिटेट हो चुका है? वी नो दैट 1 मोलर लिया था हमने, अभी कितना है? 10 टू द पावर -2, तो 99% प्रेसिपिटेट हो चुका है। और बैरियम कितना प्रेसिपिटेट हो चुका है? 10 to the power -6 के लेवल तक, तो इट इज ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ 10 to the power -4%, राइट? 10 to the power -6 into 100. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन। सो ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। एक आयन जो ज्यादा रिएक्टिव है दैट प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। अब ज्यादा रिएक्टिव भी हमको कैसे पता चलता है? एक्चुअली इसी के बेसिस पर पता चलता है, केएसपी। जिसका केएसपी कम है वो ज्यादा रिएक्टिव रहता है जनरली, एंड वो फर्स्ट रिएक्ट करता है। जिसका केएसपी कम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव एंड दैट विल रिएक्ट फास्ट फर्स्ट, ठीक है। उसका प्रेफरेंशियल रिएक्शंस पहले होगा, और वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। जिसका कम है केएसपी, वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये तो एक क्वेश्चन था ही। मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा ग्रुप में, अभी थोड़ी देर बाद में भेजूंगा, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर में, इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एग्जैक्टली नहीं है, बट समवट रिलेटेड ही है, प्रेसिपिटेशन रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में क्या होता है? एक EgCl है, ठीक है। AgCl को अगर हम डायरेक्टली वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो इसका डिसोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है। Ag plus aqueous and Cl minus aqueous, that they are going to dissolve to a very lesser extent, 10 to the power -5 molar, 10 to the power -5 molar। इसी एक्सटेंट तक ये डिसॉल्व होकर के रह जाएंगे, such that Ksp becomes equal to 10 to the power -10 molar, 10 molar square, ठीक है। और इनके डिसोल्यूशन को बढ़ाने के लिए बेसिकली अगर हम अमोनिया डिसॉल्व वाटर में इनको डिसॉल्व करते हैं, तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या होता है? ये
Ag प्लस जो है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म Ag प्लस ठीक है। चलो फिर आज यहीं पे रुक जाता हूँ। आज बाकी लोगों की तो छुट्टी ही रहेगी ना, सारे लोगों की छुट्टी रहेगी ना कॉलेज स्कूल्स की। हेलो।